Hello everyone, welcome to my channel Glow and Grow with Nidhi. This video is especially for English literature students for TGT and PGT for KVS exam who is going to give an interview. So in this video I will share firstly how to prepare for the interview, second, important English literature questions and expected demo teaching topics, and most importantly smart answers that impress the panel. So make sure you watch till the end, and in the end I will share my result that disclosed last night about KVS contractual teacher. First, you need to understand KVS interview. KVS interview is not just about knowledge, it's about your personality, it's about your communication skills and your classroom handling ability and clarity of concepts. So especially for English in literature and English students, your fluency and confidence matters a lot. And secondly, how to prepare for. So work more and more on your teaching, your especially your communication skills. Do practice, because this is the only hack. If you are not practicing whatever knowledge you have, I don't think you are going to perform well. Now we need to understand how to prepare for English subject. Your preparation should be divided into three parts. First is literature part, very important. Focus on literary periods like romantic age, Victorian age, and modern age, etc. And then famous authors and their works, like poets and their poetries, and literary devices. For example, Shakespeare's drama, William Wordsworth nature poetry, and T.S. Eliot's modern poetry. So you have to prepare this part nicely. Then second part is about grammar and language skills, because your subject is English, so your English must be nice, fluent and accurate. So you need to prepare grammatical parts like parts of speech, tenses, active passive, and active passive voices, and direct and indirect speech, and further, because panel can ask you like how will you teach tenses to class 8 students. So you must be prepared for that. They can ask you to teach anything, and at the end you have to teach टेंसेस टू द स्टूडेंट्स. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वो पहले खुद आता हो, तभी ना आप दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझा पाओ. Now third is pedagogical part, and I think this is the most important for selection, because you are here for a job, teaching job, जो कि एक skill है. Your knowledge doesn't matter if you are not able to make people understand what you are going to say and what you know. So pedagogy is must. You have to prepare it. You have to prepare the topics like teaching methods, lesson planning, Bloom's taxonomy, and NEP 2020 basics. And because they often ask what teaching method will you use in English class, so you must be aware of them and you must be prepared. Like अगर आपने कभी अपने जैसे जो न्यू है, जो जिस मुझे एक न्यू कमर ने कमेंट किया है ये वीडियो बनाने के लिए, तो ही डजेंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और ही इज़ कम्प्लीटली अ न्यू कमर, तो उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है. तो वो क्या अपने पैनल को बताएंगे कि मतलब मैंने ये टीचिंग मेथड या टूल यूज किया जिससे मैंने बच्चों को हेल्प की, या मेरी हेल्प हुई टीचिंग में, बिकॉज ही हैज़ नो एक्सपीरियंस. तो स्टिल ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिल्कुल ही न्यू हैं, तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स या मेथड्स देख के जाने हैं, और थोड़ी खुद भी उनकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर मैं किसी को इस मेथड से या इस टूल से हेल्प करूँगा तो कैसे समझाऊँगा. सो मस्ट प्रिपेयर इट. अगर आप उनको इनोवेटिव या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, भले ही मोस्ट कॉमन भी आप उनको आइडिया बताओगे कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा या मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया है, इट विल लुक इम्प्रेसिव. बिकॉज एट द एंड आपको टीचिंग ही करनी है. जो आपको फैक्ट्स हैं, आपको नॉलेज है, वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बट आपको पढ़ाना आना चाहिए, और वो भी यूनिक तरीके से, बिकॉज देर विल बी वीक स्टूडेंट्स इन योर क्लास ऑल्सो. 100% रिजल्ट किसी क्लास का आता नहीं है, तो आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा. कैसे आप एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव बनाओगे,
और कैसे, बिकॉज देयर विल बी कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, कुछ भी बैरियर हो सकता है, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो आपको उसकी पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया व्हाट डज इंक्लूजन मीन्स, या फिर आप अपनी क्लास को इंक्लूसिव कैसे बनाओगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि इंक्लूजन क्या है। बिकॉज NEP 2020 में इंक्लूजन पर ही फोकस किया गया है, और आप इससे पहले देखोगे तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड क्लासेस पर फोकस किया जाता था। अब इंक्लूजन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है एंड हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट। नाउ आई एम गिविंग यू सम लाइक, ये तो क्वेश्चन आप प्रिपेयर ही करके जाओ, बिकॉज दे आर द मोस्ट लाइक दे आर आस्क्ड वेरी ऑफन एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। तो आप जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो जीरो से स्टार्ट करके जा रहा है, एटलीस्ट इनको तो रट के ही जाना। जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अपना एक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इफ़ आई मतलब अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँ लाइक गुड मॉर्निंग मैम और सर, माई नेम इज़ दिस एंड आई हैव completed माई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, I believe in interactive and student-centered teaching methods. I have also prepared through thoroughly for KVS, focusing on both subject knowledge and pedagogy. और जैसे ये बहुत ही अगर रोबोटिक या रटा हुआ आंसर लगेगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, इतना तो आपको भी समझ में आएगा कि आपका इंटरव्यू पैनल वो इंटरव्यूज़ ले चुके हैं ज़माने से। सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड कि कौन रटा हुआ बोल रहा है, किसका ये ओरिजिनल इंट्रोडक्शन है। सो मेक श्योर ये जो मैंने आपको एक ड्राफ्ट दिया है, इसको आप पर्सनल कैसे बनाओ, आप इसमें थोड़ा एडिट करके आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल थिंकिंग, इंटरेस्ट ऐड करना है। बट मैं आपको एक मोटा मोटा एक रफ सजेशन दूं तो आपके इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, योर नेम, योर एड्रेस एंड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंसेस एंड जो भी आपने मतलब करेंटली आप जहाँ काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें तो आपके इंट्रोडक्शन में होनी ही चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू द पैनल, कि हमारे सामने जो बंदा बैठा है वो क्या है एक्चुअली, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। बिकॉज अगर आप मतलब आई वॉन्ट मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, ये सारे तो रटे हुए आंसर हैं। आपको भी पता है बोलते टाइम कि ये तो कितने ही अनफेमिलियर हैं, तो इनको लास्ट में बोलें और इस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करके बोलें कि वो ना बने हुए आंसर ना लगे और जेन्युइन लगे थोड़ी, ऑल्दो इट इज़ वेरी टफ। या कोशिश करें एक छोटा सा ही इंट्रोडक्शन दें, आपको उसको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एंड लेट देम आस्क क्वेश्चन, बिकॉज इंटरव्यू में आप कोशिश करें बहुत कम बोलें, उनको बोलने दिया जाए, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसके आंसर करें, तो आप उससे पैनिक भी नहीं होंगे और आप कुछ ज़्यादा या कम भी नहीं बोलेंगे। गलत और सही के तो चांसेस ही नहीं है इफ़ यू आर जस्ट आंसरिंग दैम। Next question will be why do you want to join KVS, and if you next question will be like if you have a weak student in your class, which teaching method will you use, या फिर how will you improve his result, and question I am sharing some questions and their answers. You can prepare for them, but I will suggest you just don't rote learn them, may improvise them and make your own answer. These are just for the help, because जो आप ऑनलाइन सर्च करके जा रहे हैं, your panel is already aware of it, so don't copy paste things. आपको अपना इंडिविजुअल वर्जन बनाना ही पड़ेगा to look more realistic and natural. एंड व्हाट लाइक डेमो टीचिंग आपको करनी ही है। 2 चीज़ जो कि मस्ट हैं, आपका इंट्रोडक्शन होना ही है, डेमो टीचिंग होनी ही है, ये आपके इंट्रोडक्शन में मस्ट चीज़ें हैं। सो प्रिपेयर दैम मोस्ट। अब डेमो टीचिंग के लिए आई विल सजेस्ट लाइक इफ़ दे मे आस्क यू टू टीच अ टॉपिक ऑन द स्पॉट, जो कि वो पूछेंगे ही, तो उसके लिए मैं आपको टिप दूँ, स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, ask questions, use examples, involve students. फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने आपको दिया टीच टेंसेस और एक्सप्लेन दिस पोएम, या उन्होंने आप, तो आप उसको कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देन आई विल सजेस्ट यू
जो कि मैंने किया, मैंने अपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने अपने सारे जो भी टॉपिक मुझे दिया गया है, जैसे मुझे पूछ लिया कि आप सेल कैसे पढ़ाओगे, तो मैंने उसको पहले रियल लाइफ़ से जोड़ा। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, अभी उनको पता ही नहीं है कि सेल क्या होती है, तो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस? तो आपने हर चाहो तो आप ये हर उसमें ही यूज़ कर सकते हो कि मान लो अगर बाहर से कोई एलियन आया हमारी अर्थ पर, तो उसको कोई चीज़ समझनी हो, तो वो कैसे समझेगा? ये एक कॉपी पेस्ट आप अपने सारे टॉपिक में कर सकते हो। आई यूजुअली यूज़ दिस ट्रिक। एंड अब जैसे साइंस, अब जो जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप उसमें कैसे इट शोज़ योर क्लेवरनेस कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल इससे स्टार्ट कर दिया, जैसे एनसीईआरटी करती है, या फिर जैसे हम अपने चारों तरफ देखें, या ऐसा कुछ सोचा जाए। अब जैसे टेंस है, टेंस के लिए आप बच्चे को कैसे समझाओगे? तो आप उसको कुछ जो वो बोल रहे हैं, सबको मौका दोगे कि चलो आप एक सेंटेंस बोलो, आप एक सेंटेंस बोलो। जैसे आपने अभी आपने ये बोला कि मैं पानी पी रहा हूँ, या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, या मैं कल नहीं आऊँगा। तो ये सारे क्या हुए? आपने अलग अलग पास्ट मतलब टेंसेस में अपने सेंटेंस को डिवाइड किया ना। आप जो डेली कॉन्वर्सेशन में बातें बोलते हैं, उनमें भी तो टेंस हैं। आप यहाँ से शुरू करके उस टॉपिक को समझाएंगे, तो बच्चे क्यूरियस भी होंगे, उनको इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि अच्छा हमने कुछ बोला, उसको ये समझा रहे हैं कि वो कुछ होता है। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है अपना टॉपिक, वो कुछ भी आपको डेमो टीचिंग के लिए दे दें। Now in the end, important, let's summarize this. Here are some important tips to crack interview. First thing and non-negotiable thing is that speak clearly and confidently. Don't rush your answers, because अगर आप उनको अच्छे लग रहे हो, your interview can continue half an hour and 1.5 hour. अगर आप उनको नहीं अच्छे लग रहे हो, they can ask you to leave within 10 minutes. So in both the conditions you have enough time. So don't rush, don't panic. आपको ये अपनी हैबिट बना लेनी है फ्रॉम नाउ टिल द डेट ऑफ योर इंटरव्यू। अब आप जिससे भी बात करोगे, बी पेशेंट, पहले आप सोचोगे और धीमे धीमे आराम से ही बात करनी है। आप इसको हैबिट बना लो, बिकॉज़ वहाँ दिख जाएगा कि आप, अगर आप इतने पैनिक हो रहे हो, या इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो जो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप किसी बच्चे को कैसे हैंडल करोगे? सो मेक योर हैबिट फ्रॉम नाउ। सेकेंड थिंग एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग विद समबडी, ये आपको खुद भी पर्सनली भी फील करना चाहिए कि अगर सामने वाला आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है बात करते टाइम, तो आपको भी अजीब लगेगा, वो अंडर कॉन्फिडेंट लगेगा। सो मेक श्योर कि आप आई कांटेक्ट बनाओ। जैसे मेरे पैनल में ऐसे काफ़ी सारे लोग बैठे थे, एटलीस्ट 6 और 7 प्रोफेसर्स वर देयर। तो उधर मुझे क्या था, मैं जब आंसर कर रही हूँ, तो मैं इनकी तरफ भी देख रही हूँ, इनकी तरफ भी देख रही हूँ, इनकी तरफ भी देख रही हूँ, सबको बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे रिप्लाई भी कर रही हूँ कि सर आई विल यूज़ दिस, देन आई विल, तो मैं आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम सेइंग मैम आई विल यूज़ दिस, आई विल यूज़ दिस। तो आपको सबके साथ इंटरेक्टिव रहना है। एंड बी ऑनेस्ट, डोंट फेक आंसर्स, दिस इज़ मस्ट। एंड वन मोर थिंग, ड्रेस प्रॉपरली। एंड जब आप एंटर करें रूम में, टेक परमिशन, और बैठने से पहले भी परमिशन लें। दिस शोज़ गुड जेस्चर। और आपको जो भी फॉर्मल क्लॉथ्स हैं वही पहन कर जाएं। अगर आप खुद सोचो कि अगर आप दिखने में कार्टून लग रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपका जो अपीयरेंस है वही है ना। जब आप मुंह ही नहीं खोल रहे हो, उससे पहले अगर कोई आपको जज करेगा तो वो आपको देख के जज करेगा। तो जब देखने में ही आप उनको बुरे लग गए, तो आपके नंबर तो वहीं कम हो गए। सो आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ सम कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरीबडी मेक्स, तो यू हैव टू अवॉइड मेकिंग दोज मिस्टेक्स, लाइक memorizing robotic answers. Don't fake your personality, don't fake your answers. And if you, especially for English literature students, poor English communication, नॉट जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। आपको इन पर बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेट ही ठीक से नहीं कर पा रहे, जब उनके साथ, वो जो मेच्योर एंड नॉलेजेबल इंसान है, आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे जो कि टेबुला रासा, मतलब ब्लैंक स्लेट हैं, इग्नोरेंट हैं, आप उनसे कैसे डील करोगे? You should think about it. And lack of confidence and ignoring pedagogy, these are some mistakes, just avoid them, don't do it. And so best of luck. इसके बाद भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, then do comment below, and follow my channel, like, share and subscribe. Best of luck.
वन मोर थिंग, आई विल सजेस्ट यू आप चैनल से जुड़े रहें, बिकॉज इंटरव्यू अपने आप में ही इतनी वर्सिटाइल एंड डायनेमिक थिंग है. सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं. मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करती रहूँगी. एंड मैं अपना एक जो मेरा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, आई एम वेरी एक्सपीरियंस, तो इतने सारे तो उसमें एक्सपीरियंसेस हैं. तो मैं जब भी इंटरव्यू देने जाती हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन ही काफ़ी लंबा चलता है, और उस मेरे इंट्रोडक्शन से ही वो लोग मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं. तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन का भी वीडियो बनाऊँगी, और भी काफ़ी चीज़ें अपलोड करती रहूँगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब.